Welcome to all of you. My name is Zunaira Asif from BS Accounting and Finance 8th semester, and I am your host for today's session. Today's webinar focuses on data handling and analysis in Excel for FYP students, an essential skill set for students working on their final year projects and research based assignments. We are truly grateful to the respected administration and faculty member for organizing this valuable webinar and providing students with an opportunity to enhance their practical research and data analysis skill. In today's session, students will gain hands-on understanding of data handling techniques in Microsoft Excel, data cleaning, coding, and organization for research, descriptive and basic statistical analysis in Excel, use of Excel tools for visualization and interpretation, and practical application of Excel for FIP data analysis. This session is designed to help students transform raw data into a meaningful insights that can support strong and well-structured final year projects. By the end of this webinar, participants will be able to confidently manage datasets and perform basic to intermediate level analysis using Excel. It's now my honor to introduce our respected speaker for today's session, Mr. Hassan Javed. Mr. Hassan Javed is an accomplished academic and researcher with a strong expertise in data analysis and quantitative research methods. He has extensive expertise in working with Microsoft Excel and multiple statistical and analytical software tools for data management, modeling, and interpretation. His academic background is highly distinguished. PhD scholar in finance, MS Finance, MBA in Finance, and BCom from Punjab University, Lahore. He has served at a multiple reputed institutions including International Islamic University, Islamabad, Namal Rawalpindi, APCOMS, Rawalpindi, and Shifa Tamir Millat University. Mr. Javed is also a proficient in a wide range of tools including Excel, SPSS, eViews, R, Python, Smart PLS, LaTeX, and financial modeling software, making him highly skilled in transforming raw data into a meaningful research insight. His research expertise include financial modeling, portfolio analysis, econometrics, return and volatility modeling, and financial connectedness with several published research papers in reputed areas of finance and economics. So without further delay, I would like to invite Mr. Hassan Javed to begin their today insightful session on data handling and analysis in Excel for FYP students. Okay, thank you very much, Beta. First of all, very warm welcome to this session to all of the students. मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन जो है वो मेरा हो चुका हुआ है, तो इसलिए मैं फर्दर कोई अपना इंट्रोडक्शन बताने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा. टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द डिफरेंट you can say that the data analysis in the Excel and the different functions and formulas and the tactics and the techniques that you can use in the Excel for the smartly data handling. Like for example, if you are doing your final year projects, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप लोग 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और मल्टीपल टाइम मेरे डॉक्टर अनम से भी जो है वो डिस्कशन इस पर चलती रही थी. तो अगर आप कोई फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं या कोई और इस तरह का आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आपने कोई प्राइमरी डाटा के ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक है, तो एनालिसिस इज द मतलब कि सेकंड थिंग. द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू यू हैव टू डू, यू हैव टू हैंडल द डाटा, यू हैव टू चेक द डाटा, यू हैव टू सॉर्ट द डाटा, यू हैव टू समराइज द डाटा. ठीक है, इनको हम रिसर्च की लैंग्वेज के अंदर या स्टेटिस्टिक्स की लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो हम इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, जिसके अंदर डाटा कि जो बेसिक आप कहते हैं ना कि चेक्स जो है ना वो उस पर लगाए जाते हैं कि इज दिस डाटा इज मतलब कि रेडी फॉर द एनालिसिस, ठीक है, या रेडी फॉर यूज है या नहीं है. ये अभी मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका पहले एक सेशन भी हुआ है एसपीएसएस के ऊपर. ये एसपीएसएस ईव्यूज या वट एवर द सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो इन्होंने नाम लिए,
तो ये बात की बातें हैं, पहले डाटा को देखना पड़ता है कि डाटा इस काबिल भी है कि उसको एनालिसिस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्राइमरी डाटा एनालिसिस, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू डू द एनालिसिस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चन एयर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने प्राइमरी डाटा एनालिसिस करना है जिसके अंदर आपने क्वेश्चन एयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड देन द रेस्पोंडेंट विल गिव द रेस्पॉन्सेज, दे विल टेक द 1 2 3 और 4। मेरे ख्याल में ये चीज़ें आप लोगों को, अगर आपने रिसर्च मेथड पढ़े हुए हैं तो आपको ये आइडिया होगा। तो उसके बाद फिर आपने अगर इसको कन्वर्ट करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करके फिर उसकी शीट को आपने एसपीएसएस में इंपोर्ट करना है, तो जैसे ही आप रेस्पॉन्सेज लेते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। ईदर यू कैन गो फिजिकली टू द ऑफिसेज एंड यू कैन गेट द रेस्पॉन्सेज, और यू कैन यूज द गूगल फॉर्म्स, ठीक है, विच इज़ वेरी, आप कह सकते हैं कि कॉमन एंड द फेमस टेक्निक इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, वो ये टेक्निक ही आजकल यूज की जाती है कि कौन बाहर जाए, कौन जाकर कंपनीज के अंदर घूमे फिरे। ठीक है, और ये मतलब कि इसमें बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, फीमेल्स के लिए जाना मसला होता है, फिर ग्रुप्स के अंदर जाना मसला बन जाता है। ठीक है, फिर कोई कोई कभी कोई मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो व्हाट इज द कॉमन, मतलब कि प्रैक्टिस जो आजकल चलती है और इजीएस्ट वे क्या है कि आप गूगल फॉर्म यूज करते हैं और वहां पर जो है ना आप उसको एक स्ट्रक्चर कर देते हैं उसका। ठीक है, आई थिंक आपसे मैडम ने जो है वो शेयर भी किया हुआ है गूगल फॉर्म का लिंक, मैंने उनको थोड़ी देर पहले भेजा था कि स्टूडेंट से कहें कि इसके ऊपर रैंडमली ब्लाइंडली जो है ना इसके ऊपर रिस्पॉन्सेज अपने दे दें, ताकि मैं उसी शीट को फिर आपको डाउनलोड करके उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके उसकी कोडिंग जो कि रेडी फॉर द यूज ऑफ द एनालिसिस हो जाए वो मैं आपको करके दिखा दूं। एंड दैट इज द पर्पज ऑफ टुडे सेशन। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या है, इसके 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 प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। सबसे पहले प्रॉस की अगर हम बात करें तो इजी है, कन्वीनियंट है। ठीक है, फिर एक्सेल पे अगर आपको काम करना आता है आप इजीली इसकी कोडिंग जो है ना वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं सारी आपको करके दिखाता हूँ। कुछ इसमें हैक्स हैं, कुछ इसमें टैक्टिक्स हैं, कुछ इसमें टूल्स हैं जिनको आप यूज करके इसकी इजीली कोडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके प्रॉस की बात आ गई है। ठीक है, अगर हम इसके कॉन्स की बात करें या डिसएडवांटेजेस की बात करें या डार्क साइड की बात करें, तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है ना, ये गूगल फॉर्म के जरिए रेस्पॉन्सेज लेकर आगे एफवाईपी के अंदर उनको एनालिसिस के लिए यूज करना। द मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है अथेंटिसिटी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको भेज दिया, ठीक है, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी, किसी ने कहीं पे क्लिक कर दिया, किसी ने बस पाँच 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 पे क्लिक कर दिया, किसी ने एग्री 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 पे कर दिया। ठीक है, यू आर नॉट, मतलब कि यू आर नॉट बॉदरिंग टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है, एंड व्हेन यू आर नॉट बॉदरिंग टू रीड द क्वेश्चन, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो जब पूछा नहीं, आपको ये नहीं पता होगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो आप ब्लाइंडली उसको रेस्पॉन्स देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, एक जगह पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब। ठीक है, आपने उसको कर दिया कि स्ट्रांगली एग्री, जी मैं बिल्कुल एग्री हूँ। दूसरी कोई स्केल आया है, ठीक है, लिकर्ट स्केल आप लोगों ने सुना होगा, उसमें पूछा गया है कि ऑल द प्रोमिसेस दैट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, उसमें आप कह रहे हैं स्ट्रांगली डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री, उसमें कह रहे हैं। ऊपर आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, नीचे आप कह रहे हैं कि हाँ जी मेरे सारे प्रोमिसेस जो है ना वो भी फुलफिल किए गए हैं। तो ऊपर आप एक अपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं, नीचे आप उसके कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मसला आता है ना वो ये आता है, और ये तब आता है जब बंदों ने क्वेश्चन पढ़े नहीं होते। ठीक है, आप फिजिकली भी लेकर जाते हैं तो वहां भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बस सर से उतारने की उसको करते हैं कि बस एक जैसे वो कहते हैं ना कि खाना पूरी, या एक बस फॉर्मेलिटी है वो आपने पूरी करनी है। तो ये सामने बंदा बैठा हो, फिर कोई थोड़ा बहुत बंदा एथिकली सोच लेता है कि यार वो सामने बैठा हुआ है, अगर मैं टिक लगा रहा हूँ तो यार वो क्या सोचेगा कि यार ये पढ़े बगैर। लेकिन जब आप सामने अवेलेबल नहीं है, मतलब कि वो इस तरह की चीजें नहीं है, तो वो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। ठीक है, मोहम्मद जुनेद साहब, ये स्क्रीन मैंने अभी शेयर ही नहीं की है, जब मैं शेयर करूंगा तो इंशाल्लाह आपको शो हो जाएगी। इट्स नॉट फ्रॉम योर साइड प्रॉब्लम, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की थी अभी। अच्छा, तो अब इसके अंदर जब आप इसको उस पे फॉर्म के ऊपर आप क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वहां से उसको इंपोर्ट करते हैं रेस्पॉन्सेज को, अब वो जो रेस्पॉन्सेज आपके पास आते हैं ना, वो आते हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म के अंदर, या जो आपने उसकी फॉर्म का डिजाइन किया हुआ होता है ना उसकी कोडिंग में आते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्टेटिस्टिकल या न्यूमेरिक्स को जो है ना वो एनालिसिस के लिए लेकर चलता है। अब वो जो आपके अल्फाबेटिकल आपकी चीजें आ जाएंगी, उनको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना हो, वो मसला बन जाता है। ठीक है, तो वही जो है ना आपको बताना है कि उसको न्यूमेरिक्स में किस तरीके से, मतलब कि विदा मेरे ख्याल में 2 to 3 क्लिक्स जो है ना आप उन तमाम चीज़ों को जो है ना वो न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब वो न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप इजीली उसकी फाइल बना सकते हैं, विच वुड बी रेडी टू यूज फॉर द एसपीएसएस एनालिसिस एंड द ईवीयूज एनालिसिस एंड अदर टूल्स एंड टेक्निक्स जो भी हैं। ठीक है,
एक बात याद रखें कि सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकता है, आउटपुट डिफरेंट हो सकती है। ईव्यूज के अंदर अगर आप काम करें, ईव्यू स्टैंड्स फॉर इकोनोमेट्रिक व्यूज, जो हम ये टाइम सीरीज एनालिसिस नॉर्मली जो होते हैं ना वो उस पे किए जाते हैं, या फाइनेंस या इकोनोमेट्रिक एनालिसिस जो होते हैं ना वो उस पे होते हैं, ठीक है। स्मार्ट पीएलएस की बात करें, डेट इज प्राइमरी और प्योरली यूज फॉर द, यानी कि मेजर जो उसको यूज करते हैं ना लोग, वो ये मैनेजमेंट वाले करते हैं जिसपे प्राइमरी डाटा एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एनवीवो है, एनवीवो आपने अगर रिसर्च मेथड पढ़ा हुआ है तो उसमें रिसर्च की दो टाइप, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के लिए ये सारे ईव्यू, स्मार्ट पीएलएस, एक्सेल, आर, पाइथन, शाइथन, ये वाले यूज होते हैं। जब हम ऑब्जर्व इसकी बात करते हैं, क्वालिटेटिव की बात करते हैं, तो उसमें आपका एनवीवो यूज होता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च पे बहुत कम एविडेंसेस मिलते होते हैं, लेकिन लोग करते हैं वो भी। क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर एविडेंसेस ज्यादा हैं, बिकॉज उसमें हर चीज को, हर थ्योरी को, हर आपके हाइपोथेसिस को प्रूफ किया जाता है बाय द यूज बाय द यूजेज ऑफ द इंपीरिकल एविडेंस। उसके बैक एंड के इंपीरिकल एविडेंस आ जाता है आपका। इंपीरिकल एविडेंस का मतलब है कि नंबर्स के जरिए आप उसको प्रूव करते हैं, कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल सीजीपीए और आईक्यू लेवल का सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये तो एक थ्योरी थी, मैंने बता दिया हाँ जी होता है बिल्कुल, जितना जिसका ज्यादा आईक्यू होगा उतना आपका सीजीपीए बढ़ेगा, ठीक है। ऑल्दो मेरे नजदीक ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, लेकिन थ्योरी यही कहती है कि जितना जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा उतना उसका सीजीपीए बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है लेकिन उनका जीपीए नहीं आता, और जिनका जीपीए आता है उनका आईक्यू लेवल जीरो के बराबर होता है, ठीक है। अब आपने ये तो एक थ्योरी से प्रूव कर दिया, और इसके अगेंस्ट आपने रेफरेंसेस वगैरह भी डाल दिए, लिटरेचर आपने लिख दिया, आपने पेजेस भर दिए इसके ऊपर। क्या कोई ऐसा प्रूफ है जो स्टेटिस्टिकली इसको प्रूफ करे? ठीक है, तो स्टेटिस्टिकली प्रूफिंग जब हम जाते हैं ना, तो वहां पर हम फिर इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, और फिर वहां पर इनको क्वांटिफाई किया जाता है। तो जब भी नंबर्स के साथ आप देख खेलते हैं ना, तो वो रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। और जब आप ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप काम करते हैं, कि मैं कहता हूं कि आज मौसम है अच्छा है, बारिश हो जाएगी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने मौसम देखा, मैंने जो हवा हवा चल रही है उसका मैंने एनालिसिस किया, मैंने कह दिया आज बारिश होगी, ठीक है। ये होती है क्वालिटी। अब इसके बैकएंड के ऊपर कोई न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, कि 1+1 हो रहा है तो बारिश हो रही है, 2+2 हो रहा है तो बारिश होगी, 2+-2 3 हो जाएगा तो बारिश नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च जो होती है ना, उसकी एविडेंसेस बहुत कम होते हैं, और बहुत ज्यादा इसको एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। क्वांटिटेटिव को ज्यादा जो है ना मिलती है। तो हम बात कर रहे थे कि टूल जो होता है ना वो कोई भी हो, ठीक है, एनालिसिस की जो आउटपुट आती है ना उसकी इंटरप्रिटेशन सेम होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आप एक्सेल के जरिए भी डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेल के जरिए भी रिग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि अभी आपका सेशन हुआ उसमें जो भी गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने क्या बताया आपको, अगर कोरिलेशन कैलकुलेट करके दिखाई है, आपको रिग्रेशन रन करना सिखाई है या बताई है, ठीक है। यही तमाम चीजें आपकी एक्सेल के ऊपर भी हो जाती हैं, ठीक है। तो टूल जो भी हो, ठीक है, इंटरप्रिटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसकी आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। मैं अब आपसे जरा स्क्रीन शेयर करता हूं। पहले मैं आपके साथ जो है ना गूगल फॉर्म जो है ना उसकी शीट शेयर करता हूँ। वो मैंने रात को ही बैठ के बनाई थी। मैंने कहा कि चलें मैं एक स्केल डिजाइन कर लेता हूँ, उसके अगेंस्ट पे रेस्पॉन्सेज ले लिए। मेरे ख्याल में 100+ रेस्पॉन्सेज उस पर आए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ही हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सेल में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो लेट मी डाउनलोड द शीट फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। कहीं भी आपको कोई चीज़ समझना है या कोई आप स्किप कर जाते हैं तो यू कैन स्टॉप मी और आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं डाउनलोड करके फिर मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। राइट नाउ वी हैव गॉट, ओके ओके, वी हैव गॉट 95 रेस्पॉन्सेज, ठीक है। कोई मसला नहीं है, हमने तो एक मतलब कि एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस देखना है ना, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो 95 रेस्पॉन्सेज हैं, इनको डाउनलोड मैं कर लेता हूँ, ठीक है। आप फॉर्म पे जाएंगे, वहां पर जाकर अपने फॉर्म को ओपन करेंगे, वहां से जाकर डाउनलोड एज अ CSV करके उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये वाला मेथड मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि गूगल फॉर्म से किस तरीके से रेस्पॉन्सेज को डाउनलोड करते हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट ज़रा वेट करें, मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ, फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी ये मेरी स्क्रीन शेयर हुई है, आपसे काइंडली कोई स्टूडेंट कंफर्म कर दे। जी सर, हो रही है स्क्रीन शेयर, लेकिन वो यस आपका सर, ओके, हो रही विंडो है। जा रही है, फाइल नहीं शेयर हो रही है। अभी आपने मेरे ख्याल से शायद ओपन नहीं किया स्क्रीन शेयर ब्राउज़र। हो गई है आपके सामने, ये जो गूगल फॉर्म है ये ओपन हुआ है। जी, जी, हो नो गया। सर, अभी हुआ है। ओके, ये थोड़ा सा इसमें लैग आता है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा सा लैग आएगा, लेकिन हो जाएगा। मेरे सामने ये एक वो कैनवस बना हुआ आ गया है, तो उसमें आई 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 होप कि ये शेयर हो गई होगी। ओके, ये मेरे वो फॉर्म था, ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्सेज के अंदर मेरे पास 95 रेस्पॉन्सेज आए हुए हैं, और ये देखिए ये सारी उसकी समरी जो है ना उसने नीचे मुझे बना कर दी हुई है।
ठीक है। ये कोई मेरा ये मेरे ख्याल में ये डॉक्टर खुरम शहजाद ने मुझे पढ़ाया था, एमएस का जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर का ये कोर्स था। क्या नाम था, एडवांस रिसर्च मेथड। उसमें हम उन्होंने कहा था कि यार आपने ना कोई भी एक रिसर्च पेपर लिखना है, उसका एनालिसिस करना है, तो ये मैंने कोई एक आधा रिसर्च पेपर, क्योंकि वो एचआर की हैं तो उन्होंने कहा था कि आप एचआर पे करें, तो मैं उस पर आपको गाइड बेहतर करूंगा, तो इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ पर ये एक टॉपिक लिया था। इन बैक 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैंने ये काम किया था, ये सारा स्केल स्केल आप देखें, ये सारा बना हुआ है स्केल यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें डेमोग्राफिक्स हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चनियर आ गया, वेरिएबल्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके मैंने रेस्पॉन्सेज जो है ना, यहाँ से मैं आप इस पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से ये डाउनलोड एस सी जो है ना ये आप करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास ये रेस्पॉन्सेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला आ गया है एक्सेल की फाइल, ठीक है। अगर आपको मैं इसका व्यू टाइल्स में करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक्सेल की कॉमा डी लिमिटेड की फाइल बनती है जी ये, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि जो आपका ऑनलाइन जितनी भी फाइल्स आपकी डाउनलोड होती है ना, उनकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है ना वो कॉमा डिलिमिटेड की होती है। बिकॉज जब आप फाइल बनाते हैं ना तो वहां पर जो वेबसाइट की कोडिंग हुई भी होती है ना, वो कोडिंग कॉमा डिलिमिटेड को एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा एक्सेल वर्कबुक डॉट एस एल एक्स को एक्सेप्ट नहीं करती वो, ठीक है। तो इसीलिए कॉमा डिलिमिटेड की फाइल होती है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें जी, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, तो ये फाइल आपकी आ गई है। इसको कट करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये देखिए जी ये फाइल आपकी ओपन हो गई है। अब देखिए वो पूछ भी रहा है कि आपने इसको सेव करें, क्योंकि इट्स नॉट इन द, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेव जो है ना उस फॉर्म में नहीं है। तो अगर आप सेव करना चाहें तो फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद इसको सेव एज करें, ब्राउज करें, कहीं भी आपने अगर सेव करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, इस पर क्लिक करें, ये कॉमा डिलिमिटेड को यहाँ से आप एक्सेल में कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप एक्सेल में करना चाहते हैं एक्सेल में कर लें, इस पर क्लिक करेंगे जी और इसे सेव करेंगे तो अब ये सेव वाला एरर खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ये कितना एक 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 मतलब कि कोई इरेगुलर सा कोई रैंडम सा डाटा जो है ना मेरे सामने आ रहा है, मैं पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है। तो पहले तो हम इसकी जरा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे जी, आप इन तमाम ये जो कॉलम्स हैं इनको सेट करें, जहां तक आपका ये डाटा है, यहाँ तक डाटा है जी आपका, यहाँ तक। और इसके ऊपर ये कर्सर ला के डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका इसकी कॉलम की विड्थ उनके मुताबिक हो जाएगी आपकी। तो ये देखें, थोड़ा सा डाटा हमें समझ आ गया है कि डाटा जो है ना वो किस फॉर्म में है। यहाँ से हमारे वेरिएबल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आगे जा रहे हैं हमारे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये हमारे जा रहे हैं आगे। और यहाँ पर ये क्या है जी, ये हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं उसके, ठीक है। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है जनरल इंफॉर्मेशन, कि आपकी जेंडर क्या है, आप एज कैटेगरी कौन सी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है जी आपका, इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी टेन्योर क्या है। ये जितने भी रेस्पॉन्सेज है ना, ये मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं इस्लामिक के, मैंने उनको भेजे थे रात को। मैंने कहा था कि रैंडमली ब्लाइंडली इसके ऊपर जो है ना मतलब कि रेस्पॉन्स दें, ठीक है। और कुछ मैंने मैडम को भेजे थे, शायद आपके पास ये आया है या नहीं आया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ऐसे ही कोई रेस्पॉन्स दे दें, क्योंकि हमें चाहिए था रेस्पॉन्सिव, हमें एक डाटा फाइल चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक डाटा फाइल मैं नई बनाकर ही आपसे शेयर करता हूँ। ये टाइम स्टैम्प जो है इसको यहाँ से डिलीट करें जी, राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर आप एक और रो इंसर्ट कर सकते हैं, इस कॉलम पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट में जाएं। कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होता है, रो हमेशा टॉप इंसर्ट होती है। इस पे इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सीरियल नंबर का, इस कॉलम को आप नाम दे सकते हैं, तो इसको मैंने सीरियल नंबर कर दिया और यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। इन दोनों को क्लिक करें और नीचे तक ड्रैग करें तो ये सारी आपकी काउंटिंग आ जाएगी। तो कितने रेस्पॉन्सेज है जी, 95 रेस्पॉन्सेज है जी मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने कहा कि मुझे याद रहे मुझे ये कितने रेस्पॉन्सेज हैं। बाकी बेटा इनकी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है। पहली रो को आप बोल्ड कर दें ताकि पता चले कि ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब देखेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका अगर छुप गया, डबल क्लिक करें तो उसकी विड्थ जो है ना वो एडजस्ट हो जाती है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी एडजस्ट हो जाएगी। सब कॉलम को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो सब की एक ही फ्लो में हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें सबकी एडजस्ट हो गई है विड्थ। तो ये इस तरीके से आप विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला जी हमारे पास जेंडर। अब देखें हमने मेल को क्या, मैं सर्वे क्वेश्चन जो है ना वो भी आपके सामने ओपन करता हूं जहां से मैंने ये बनाया था स्केल, ठीक है। तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, एक मिनट ठहरें। ये है जी सर्वे क्वेश्चनियर, ये मॉडल भी पड़ा हुआ है मेरे पास, ये मैंने वैसे ही सेव कर लिया। ये है जी वो जो मैंने बनाया था। पहले मैंने डेमोग्राफिक्स डाल दिए थे, उसके बाद ये तमाम चीज़ें डाल दी। डेमोग्राफिक्स बिल्कुल एंड पे हैं। तो ये देखें जी, ये डेमोग्राफिक्स के अंदर सबसे पहला अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास
ये वाला इसको तो बंद करते हैं। ये देखिए जी, ये आपके पास जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये जेंडर है, फिर एज है, फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, फिर आपके पास क्वालिफिकेशन है, फिर टेन्योर है। तो ये देखिए, ये सारे आपके पास डेमोग्राफिक्स पड़े हुए हैं। अब देखें, अब हमने इसकी कोडिंग करनी है, ठीक है। तो कोडिंग के लिए मेल को 1 का हुआ है, फीमेल को 2 का हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मेल, ये देखें ये वाली फाइल जो है ना, ये मैं एक्सेल के अंदर तो मेरे पास है, इसको मैं एसपीएसएस में लेकर जाऊंगा। एसपीएसएस में तो डाटा भी, डाटा आपको चाहिए होता है। डाटा का मतलब क्या है? डाटा का मतलब ये है कि आपको चाहिए होता है एसपीएसएस के अंदर न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर डाटा। लेकिन ये तो सारा अल्फाबेटिकल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि जेंडर में मेल एंड फीमेल जो है ना, फीमेल 2 है, मेल 1, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने अब इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इस पर क्लिक करेंगे कॉलम पे, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। कंट्रोल H इज फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस। तो जैसे ही आप इस पूरे कॉलम को सेट करके, कॉलम सेट करना कोई मसला नहीं है, आप यहां पर क्लिक करें, पूरा कॉलम सेट हो जाएगा। यहां पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करें, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप कंट्रोल H दोनों बटन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन आ जाएगी। अब फाइंड व्हाट, वो कह रहा है कि फाइंड क्या करना है आपने। मैं कहता हूं कि भाई मैंने मेल फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है 1 के साथ। यू गॉट माई पॉइंट कि आई हैव टू सर्च द मेल, यानी कि इस पूरी कॉलम में से मेल को सर्च करो, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दो 1 के साथ। बिकॉज मेल के अगेंस्ट जो मैंने कोडिंग डाली हुई है वो 1 डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं करूंगा ना, ये एक मिस्टेक करेगा। मिस्टेक क्या करेगा कि ये जो फी के बाद मेल है ना, ये इसको भी 1 कर देगा, यानी कि फी 1 ये कर देगा। इसको जरा चेक करें जी। रिप्लेस ऑल करेंगे जी इसको। जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने कर दिया, ऑल डन, वी हैव मेड 95 रिप्लेसमेंट। तो 95 ही थे हमारे पास क्वेश्चन के। लेकिन मसला क्या हुआ? फी 1 इसने कर दिया। अब इस मसले को इग्नोर करने के लिए इसका हैक क्या है, या इसकी टैक्टिक क्या है, या इसका जो एक शॉर्टकट है या जो तरीका है वो क्या है, कि आप जो दो जॉइंट लफ्ज है ना, पहले उनको जो है ना आप वो करें, क्या होता है, रिप्लेस करें। जॉइंट लफ्ज का मतलब है कि जो दो लफ्जों से मिलकर बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रांगली डिसएग्री है, तो ये स्ट्रांगली डिसएग्री, ये दो लफ्ज है। तो जो इनसे मिलकर बन रहा है ना, पहले आप इनको जो है ना वो करें, ठीक है, और उसके बाद जो सिंगल है ना फिर उनको करें। तो इसमें ये मसला आपको नहीं आएगा। अदरवाइज आप बार बार ये करते रहेंगे, फिर भी आपका मसला सॉल्व नहीं होगा। तो आप जेंडर पे क्लिक करें, कंट्रोल H दबाएं। आप यहां पर सबसे पहले फीमेल, अच्छा ये ख्याल करना है कि कई बच्चे होते हैं उन्होंने मैंने क्योंकि करता हूं तो मैं हर चीज का कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड करता हूं। जैसे डेली का D कैपिटल है, वेजेस का W कैपिटल है, और कोई जहाँ पे स्ट्रांगली का S कैपिटल है, एग्री का A कैपिटल है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कैपिटल नहीं करते, स्ट्रांगली एग्री छोटे में लिख दिया, स्ट्रांगली कैपिटल हो गया, एग्री छोटे में आ गया, A स्मॉल में आ गया। तो ये आपने जो ये कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल वर्ड्स है ना, इनका आपने ख्याल करना है। अब अगर किसी ने यहाँ पर फीमेल जो है वो इस तरह लिखा हुआ है, फिर वो ये लिखेगा, यहाँ पे F जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्योंकि फीमेल का F कैपिटल है, तो मैं इसको इस तरह ही लिखूंगा, फीमेल। और फीमेल को मैंने 1 से तो नहीं करना ना, फीमेल को तो मैंने 2 से करना है। रीजन ये देखें, यहां पर मैंने फीमेल को 2 कहा हुआ है, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्लिक करेंगे और अब इसे करेंगे रिप्लेस ऑल। अब जब आप इसे रिप्लेस ऑल करेंगे ना, सारे फीमेल जो है ना, ये देखिए सारे फीमेल 2 हो गई हैं। ये एक्सेल के अंदर जो है ना कोडिंग करने का एक हैक है कि अगर आप इसको रिवर्स तरीके से करते हैं ना जाके, यानी कि जो आपका कंबाइंड या जॉइंट लफ्ज है या कंपाउंड लफ्ज है उसको आप पहले करेंगे ना तो वो सही करेगा। लेकिन अगर आप सिंगल वर्ड को पहले करेंगे तो वो मिस्टेक कर देगा। अब आप कहेंगे सर फीमेल में भी तो मेल आ रहा है लेकिन उसने नहीं किया, लेकिन वो लफ्ज कंप्लीट है, वो जुड़ा हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो ये एक्सेल ये प्रॉब्लम करता है कि आपने जो कंपाउंड वर्ड है ना या जो ज्वाइंट वर्ड है ना उसको आपने पहले करना है, या जो बड़ा वर्ड है ना आप यूं कर लें कि जो बड़ा है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आपने पहले करना है। ओके करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, तो ये देखिए ये आपका फीमेल सारा 2 हो गया, और मेल अभी क्योंकि किया ही नहीं है, 2 2 2 जहां जहां फीमेल है ना वो आपका 2 हो गया है। आप फिर कंट्रोल H करें, और अब आप यहां पर मेल को, सॉरी ये आप देखें मेल को M कैपिटल और ये 1 और इसको 1 कर दें। अब देखें यहां पर उसको मेल सिर्फ मेल में ही नजर आएगा, ठीक है, फीमेल में तो कुछ ना, बाकी और कहीं पे मेल है ही कोई नहीं। अब आप इसको रिप्लेस ऑल करें तो ये देखें जी ये उसका 1 हो गया और वो उसका 2 हो गया। सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं तो ये कर दें, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपने जेंडर की कोडिंग कर दी, ठीक है। तरीका क्या है कि आपके सामने ये जो आपने नंबर दिए हुए हैं ना 1 2 3, ये आपको पता हो कि आपने किस कैटेगरी को क्या नंबर दिया हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एज है, एज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल H करेंगे। कंट्रोल H के बाद अब देखिए एज की कैटेगरी अगर पहले हम देख लेते हैं
कि ये 1 है 25 से 35, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे ही होगा ना। 1 2 3 4 आपने इस तरह ये बॉक्स नहीं बनाना, आप ना बनाए, आप 1 2 3 4 इस तरीके से करके लिख दे। फिर टेन्योर में भी 1 2 3 4 आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 25 से 35 1 होगा, 36 से 45 2, देन 3 देन 4। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, कंट्रोल H करते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसकी कोडिंग में स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। जब यहां पर आएंगे ना, ये सारे एक ही मर्तबा हो जाएंगे सारे। ठीक है, लेकिन इनको आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो देखें 25 से 35, अब देखें जैसे यहाँ पर एज लिखी हुई है वैसे ही लिखनी है। मैं अगर यहाँ पर स्पेस डाल दूं, इधर भी स्पेस डाल दूं, ये नहीं करेगा, क्योंकि स्पेस एक स्पेशल करेक्टर है एक्सेल के अंदर, वो उसे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे दरमियान में अगर मैं ये 25 to 35 कर दूं, नहीं उसे आइडेंटिफाई करेगा ये। तो आपने एज इट इज उसको लिखना है 25-35, इसको जी आपने करना है 1। ठीक है, अब देखें इसमें तो कोई फीमेल मेल उस तरह की चीज ही कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो आप आराम से कर, नंबर को तो नंबर आराम से कन्वर्ट हो जाता है। रिप्लेस ऑल करेंगे जी, ये 1 हो गया। ठीक है, ओके कर दें। अब इसी विंडो में 36 से 45 ये आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए जी, 2 ही है ना 36 से 45, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रिप्लेस ऑल करेंगे, चलिए जी ये आपका 2 हो गया। और कोई है इसमें कैटेगरी? अच्छा, फिर उसके बाद 46 से है आगे, तो 46 से कितना है जी, 55, ये आपका फ्री हो जाएगा। और इसको आप रिप्लेस ऑल कर दें, तो ये देखिए ये भी सारा रिप्लेस हो गया। उसके अलावा कोई और देख लें, कोई और है? और कुछ भी नहीं है। अगर आपका होता, मतलब कि जो अगली कैटेगरी है वो कौन सी थी आपकी, वो थी 56 से 65। अगर ये होता तो इसे आप क्या करते हैं, इसे आप यहाँ पे लिखते 56 से 65 और इसको आप 4 कर देते। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी एज भी अ, हो गई है। ठीक है, यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज यू कैन आस्क। अदरवाइज इसमें मेरे ख्याल में कोई एज सच कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने जो अपने क्वेश्चनेयर के ऊपर जो आपने नंबरिंग दी हुई है उसको आप एक्सेल में उसकी कोडिंग के अगेंस्ट कौन सा नंबर आप यूज करेंगे। ओके, उसके बाद ये आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है और डेली वेजेस है। 3 ही कैटेगरीज हैं और तीनों कैटेगरीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। कर लेते हैं जी कंट्रोल H। अच्छा, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करके करना है। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करेंगे ना तो फिर ये मसला कर देगा। इसको सिलेक्ट करना है कॉलम को, कंट्रोल H करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले जी परमानेंट, परमानेंट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, PERMANENT, परमानेंट। और इसको आपने करना है 1, सॉरी, परमानेंट को आप कर देंगे 1 और इसे करेंगे रिप्लेस ऑल। अगर इसको सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट 1 को करेगा, फिर दोबारा रिप्लेस दबाना पड़ेगा, फिर रिप्लेस प्रेस करना पड़ेगा, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑल करेंगे तो सबको 1 कर देगा। ले लीजिए आपका सारा 1 हो गया। कोई भी आप देख ले, कहीं भी परमानेंट बचा नहीं होगा आपका, सारा 1 से आ गया। उसके बाद है जी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल को आपने 2 करना है तो ये आपने 2 कर दिया। उसके बाद रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल हो गए आपके। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है डेली वेजेस। डेली वेजेस इसको आप कर देंगे फ्री, इसको रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये डेली वेजेस भी आपके रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको रिप्लेस कर लेंगे। अब यही काम आपने इसके साथ भी करना है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए असेसमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ, ये शीट आपसे शेयर हो जाएगी। तो MBA और ये टेन्योर वगैरह को आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, हम आते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट, मेरे पास कितने 9 क्वेश्चन जो है ना वो इस स्केल के हैं, यानी कि इस वेरिएबल के हैं। तो यहाँ पर देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके अगले के स्केल के 5 हैं, फिर उसके अगले के 5 हैं, और फिर उसके बाद जो वेरिएबल है उसके मेरे ख्याल में 16 या 17 है। तो ये सारे आपके पास दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप 1 बाय 1 भी करना चाहें तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार करना चाह रहे हैं तो आप एक ही बार भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको एक ही मरतबा करके दिखा देता हूं, तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को एक ही बार सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्केल सेम है। इन तमाम को मैंने एक ही बार सेट कर दिया। कंट्रोल H पे आएंगे जी आप। ठीक है, अब जरा देखिए, ये होती है देखने वाली चीज। सबसे पहले आपने जो करना है ना, वो आपने करना है स्ट्रांगली डिसएग्री को आपने करना है जी। सबसे पहले आपने स्ट्रांगली डिसएग्री को करना है। और स्ट्रांगली डिसएग्री हमारे स्केल के अंदर क्या था,
देख लेते हैं उसको, स्ट्रांगली डिसएग्री को क्या हमें नंबर दिया हुआ था। स्ट्रांगली डिसएग्री 1 है जी, डिसएग्री 2 है, 3 तो न्यूट्रली होता है, ठीक है, 4 एग्री, और 5 जो है ना वो स्ट्रांगली एग्री है। पहले हम स्ट्रांगली डिसएग्री को, इसका प्रोसीजर देखिए, स्ट्रांगली डिसएग्री को करेंगे, फिर हम स्ट्रांगली एग्री को करेंगे, फिर हम डिसएग्री को करेंगे, फिर हम एग्री को करेंगे, फिर न्यूट्रल को करेंगे। क्योंकि अगर हम एग्री को पहले कर देंगे ना तो वो डिस के बाद एग्री आ रहा है वो उसे भी कर देगा, ठीक है। तो जो वही वाली बात, जो जुड़ा हुआ लफ्ज है ना उसको पहले करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए जी, कंट्रोल एच करेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री 1 था जी हमारा, ठीक है, और इसे कर देंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करेंगे, स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक होगी, स्ट्रांगली डिसएग्री स्पेलिंग तो आर ठीक है। स्ट्रॉन्गली की स्पेलिंग गलत है। हाँ, स्ट्रांगली के स्पेलिंग गलत है, सॉरी, ठीक है जी, गुड। स्ट्रांगली डिसएग्री ठीक हो गया जी। रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये देखें, ये उसने सारे जो है ना उसको कर दिया है। 415 रिप्लेसमेंट की है जी उसने पूरी इस शीट के अंदर। ओके करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये देख लें जी, ये सारा आपका जहां जहां स्ट्रांगली डिसएग्री आया होगा ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसने सारे को वन कर दिया है आपके, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। अब कंट्रोल एच, अब मैंने क्या कहा कि अब आप करेंगे स्ट्रांगली एग्री को, AGREE, और स्ट्रांगली एग्री हमारे पास 5 होता है लिकर्ट स्केल के अकॉर्डिंगली। लिकर्ट स्केल में जो हाई प्रायोरिटी होती है ना वो एग्री को, स्ट्रांगली एग्री को शो करती है। उससे लोअर जो टीयर होता है वो एग्री, उससे लोअर टीयर वो मिडल में आता है न्यूट्रल, उससे लोअर टीयर डिसएग्री, उससे बिल्कुल एक्सट्रीम लोअर टीयर स्ट्रांगली एग्री को, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी 5 पे आती है। इसे आप करेंगे रिप्लेस ऑल, तो जैसे ही आपने किया तो 300 रिप्लेसमेंट कर दीजिए उसने, ओके कर दिया। अब मैं क्लोज नहीं करता इसको, मैं आपको एक ही मरतबा करके दिखा देता हूँ। न्यूट्रल कर लें जी, न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसके लिए आप 3 कर दें। ये न्यूट्रल की स्पेलिंग देख लीजिए, NEUTRAL, न्यूट्रल यही है ना जी। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना, यही स्पेलिंग होनी चाहिए, NEUTRAL। रिप्लेस करें जी, 1, एक जितनी भी रिप्लेसमेंट इसने कर दी है, ठीक है, ये इसने कर दी। और उसके बाद आपका आप देखें डिसएग्री और एग्री रह गया है आपका, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले डिसएग्री को करेंगे जी, हाँ, DISAGREE। ये डिसएग्री है तो डिसएग्री आपका क्या होता है जी, डिसएग्री आपका 2 होगा, ठीक है, और एग्री आपका 4 होगा। रिप्लेस करें जी, तो ये आपकी रिप्लेसमेंट इसके अंदर आ गई है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आपका रह गया है वो रह गया है एग्री, और इसको आप कर देंगे 4, और रिप्लेस ऑल करेंगे, लें जी, क्लोज कर दें। ये लें जी, ये आपकी शीट क्या आ चुकी है, ठीक है। ये देख रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो यहाँ पर रिप्लेस ना हुआ हो, ठीक है। अब अगर आप इसको वो करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब कोडिंग कैसे होती है जी, अब मैं यहाँ पर स्केल्स के नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो देखें, फर्स्ट है जी मेरा ब्रीच ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, और इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है BPC। तो ये BPC 1 होगा, ये 2 होगा, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पर आप लिखें BPC 1, ऐसे लिख दें जी, ठीक है। और यहां पर आप लिखें BPC 2, इस तरीके से लिख दें, यानी कि ब्रीच ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के स्केल का पहला आइटम, ठीक है। और पहले आइटम का रेस्पॉन्स ये फर्स्ट फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट का रेस्पॉन्स ये है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, 6, 7, 8 के रेस्पॉन्सेज हैं। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, यानी कि इनको इस तरीके से करके ना ये सिलेक्ट करें, और ये फ्लिप हैंडल बनाएं। फ्लिप हैंडल बनाने के बाद जो है ना आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन कहाँ तक कंटिन्यू करना है, 2 कर ली है ना, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 टाइम्स इसको आपने आगे ड्रैग करना है। तो देखें, एक, ये 1 हो गया, 2, 3, वो देखें वो साथ साथ उसके, वो आप देख रहे हैं नीचे वो 7 आ रहा है, वो 8 आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 9 है, तो मैं 9 तक ही जाऊंगा, यहाँ तक। ये यहाँ पर लाकर आप इसको छोड़ देंगे, तो ये BPC देखें आपका कॉपी हो गया, BPC 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप कहेंगे सर इतनी ज्यादा स्पेस जो ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पेस है, ये कम नहीं हो सकती जी? बिल्कुल हो सकती है, इसको कम कर देते हैं। ये देखें जी, इस BPC वाले को क्लिक करें, आगे तो भी हमने करना है ना, और इस पे डबल क्लिक कर दें, तो ये देखें जी, ये आपका स्केल शॉर्ट हो गया जी। शीट बननी शुरू हो गई है जो SPSS के अंदर जाकर बन सकती है। ये देखें, ये आपकी शीट इसमें कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब मिसिंग डाटा कैसे होता है मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले इसको बाकियों को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन इसके हो गए। जॉब एंड सिक्योरिटी, ये भी एक वेरिएबल है, JI इज द शॉर्ट एब्रीविएशन, एंड द 5 आर द 5 आइटम्स आर अवेलेबल इन दिस स्केल।
इसका मतलब है यहाँ पर होगा JI1, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये ऐसे ही लिख देता हूँ, इतने ज्यादा नहीं है, JI2, या चलें JI1 JI2, ये JI3, ठीक है। और उसके बाद इसको इधर लेके आए, ये JI4 और ये JI5, और इसको भी यहां से डबल क्लिक करें तो ये भी आपका थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्केल है जी आपका, मोस्ट ऑफ द डे। क्वेश्चन भी चेक कर लें कि ठीक चल रहे हैं ना, ये देखिए मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ, इसका मतलब है ठीक चल रहे हैं हम, ठीक है। JS क्या है जी, ये JS1, ठीक है। फिर JS2, उसके बाद नेक्स्ट कितने हैं जी, 5 ही हैं जी इसके भी, तो JS1 JS2, इसको ले जाते हैं जी आगे, 3 4 5, और इसके ऊपर सेलेक्ट करके डबल क्लिक, कहीं भी लाकर डबल क्लिक कर दें वो हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट रह गया जी आपका, वो है जी आपका डिविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर, DWB, इसका मतलब है DWB1, ठीक है। और इसके बाद DWB2, अब ये तो आखिर तक जाएगा ना, ये तो हमारे पास लास्ट स्केल है, लेकिन इसके बाद और कोई स्केल नहीं है। इसके बाद वो फिर डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें जी DWB2, और इसको एंड तक ले जाएं, ये 16 या 17 होंगे, ये लीजिए ये हो गया जी आपका। और उसके बाद इस इन कॉलम्स को सेलेक्ट करें सबको, और यहाँ पर ये ब्लैक सा कर्सर बनाकर डबल क्लिक कर दें तो ये आपका ये हो जाएगा, लें जी, ये आपकी शीट जो है ना, ये आपकी शीट कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप इसको अगर इसकी मजीद फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसको सेंटर अलाइन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ये दो वेरिएबल्स जो है ना, ये अब आप लोगों ने खुद इसमें कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आपकी होम असेसमेंट के लिए। नो दिस इज द शीट, ठीक है, जो कि हम अब SPSS के अंदर जो है ना हम लेकर जाएंगे। तो ये देखें, ये सारी शीट जो है ना ये आपकी तैयार हो चुकी है, Ctrl+S दबाएं तो ये सेव भी हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपने SPSS की मैं बात करूं तो मैं आपको एक लेआउट जरा दिखाता हूं कि इसको SPSS के अंदर रेडी टू यूज आपने किस तरीके से बनाना होता है, ठीक है। SPSS मेरे पास है, मैं ओपन कर लेता हूं, क्योंकि SPSS के अंदर जो है ना इसकी थोड़ी सी इसको ट्रांसपोज करना पड़ता है डाटा को सारे को। उसकी वजह यह है कि SPSS जो है ना वो डाटा व्यू जो है ना वो ट्रांसपोज की फॉर्म के अंदर जो है ना वो आपको दिखाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये आप लोगों ने अभी जो सेमिनार आपका वेबिनार हुआ उसमें आपको पता होगा कि ये टाइप एंड डाटा पे क्लिक करें, ओके कर दें इसको, ठीक है। जैसे आप इसको ओके करते हैं तो ये आपका एक व्यू आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप शीट बनाते हैं, और ये सॉरी, ये आपका वेरिएबल व्यू, यहाँ पर आप शीट बनाएंगे, यहाँ पर आपके वेरिएबल्स के नाम आएंगे, और ये आपका डाटा व्यू होगा, ठीक है। अब अगर वेरिएबल्स के नाम जो है ना देखें, ये आपके पास वेरिएबल्स के नाम हैं, यानी कि सबसे पहले आपके डेमोग्राफिक्स आएंगे, फिर ब्रीच ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के वेरिएबल आएंगे, फिर उसके बाद बाकी सारे वेरिएबल आएंगे, फिर उसके बाद बाकी सारे वेरिएबल्स जो है ना वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पर मेरे पास डाटा जो है ना वो रोज की फॉर्म में है। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये रोज का डाटा जो है ना ये आपके पास आता है, डाटा, ठीक है। जहां तक बात है डाटा की, तो डाटा मैंने बता दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मल्टीपल मैसेजेस वगैरह आ रही हैं, मैंने भी चेक की हैं, डाटा आपको अवेलेबल है, ठीक है। ये मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपसे, और डाटा की फाइल भी शेयर कर दी जाएगी आपसे, और एक्सेल का जो डाटा मैं अभी करवाऊंगा आपसे वो भी मैं सारा डाटा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसकी फिर जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी हुई आप उसकी प्रैक्टिस फिर कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये आपके पास रोज की फॉर्म में डाटा है, लेकिन मेरे पास जो एक्सेल की फाइल है उसमें ये कॉलम में पड़ा हुआ है, यानी कि इस तरीके से डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए इस फॉर्म में। कुछ मसला नहीं है, आप यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट करें, दूसरी शीट पर जाएं, इन हेडिंग्स को कॉपी कर लें, ये सारी हेडिंग्स जो हैं ये ऊपर तक, Ctrl+C करें, शीट पे आए, यहाँ पर राइट क्लिक करें, वहां पे Ctrl+C करना है, कॉपी करना है। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे जी आप, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपने यहाँ पर ट्रांसपोज कर देना है, और यहाँ पर आपने वैल्यूज कर देना है। ये वैल्यूज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कर दें, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्सेल कॉपी पेस्ट में ना कोई मसला, रन टाइम एरर आ जाता है तो कोई मसला कर जाता है। तो यहाँ पर वैल्यूज, ये ऑल पे था, इसको वैल्यूज करेंगे और इसको ट्रांसपोज करेंगे। दोबारा देख लें कि यहाँ से इसको कॉपी किया, एक नई शीट क्रिएट की, उसके पहले ही सेल के अंदर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+PS, इन चारों बटन को एक साथ दबाना पड़ता है, Ctrl+Alt+PS, इस पे क्लिक करेंगे, ये शीट विंडो आएगी, वैल्यूज पे करेंगे, और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे, ओके करेंगे तो ये लेंगे, ये सारा डाटा आपका यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, और इसी तरीके से ही मुझे यहाँ पर चाहिए एसपीएसएस के अंदर जी, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। ये देखें ना, आपको इसी तरीके से चाहिए ना यहाँ पे डाटा। तो ये वाला डाटा जो मैंने बनाया है ये इस तरीके से नहीं बन गया। ठीक है, सीरियल नंबर को यहाँ से उड़ा दें, डिलीट कर दें इसको। हाँ जी, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास, अच्छा ये वन बाई वन अगर आ रहा है तो ये शायद फिर वन बाई वन लेगा ये। ठीक है, तो इसको फिर वन बाई वन आपको करना पड़ेगा, या यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर कंट्रोल डी अगर करें, बस इसको फिर वन बाई वन जो है ना आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से देख लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। बस ये वन बाय वन जो है ना ये आपको करना पड़ेगा। एज, एज के बाद ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्वालिफिकेशन, इनको करके देख लें। दो दो शायद यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे हो जाना चाहिए, कंट्रोल सी करें, तो यहाँ पर पेस्ट करें। ये लीगल गया, बस इसको जो है ना, इसको आपको फिर वन बाय वन जो है ना यहाँ पर ये जाकर आपको बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये इन फ्लो जो है ना ये आपके पास आ जाएंगी। कंट्रोल सी करें और यहाँ पर जाकर अगर आप इसको पेस्ट करें तो इसको हो जाना चाहिए। ये देखें, ये वाले वेरिएबल जो है ना ये आपके पास वन फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन ये जो आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स है ना, इनको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक इंसर्ट कर लें वेरिएबल, इंसर्ट वेरिएबल। इस वेरिएबल का नाम जो है ना वो आप दे दें, क्या था, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दे दें जी इसको। तो मेरे ख्याल में इस वजह से भी नहीं आ रहा कि एम्प्लॉयमेंट और स्टेटस उसके दरमियान में स्पेस है, स्पेस को ये वेरिएबल कंसिडर नहीं करता जी, बिल्कुल इस वजह से नहीं आ रहा होगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये मेरे ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट वेरिएबल करें और यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिख देंगे, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, और यहाँ पर आप लिखते हैं टेन्योर। तो ये आपका टेन्योर, वो बस इस वजह से नहीं आ रहा जी स्टूडेंट्स के, वो आपका जो है ना एम्प्लॉयमेंट और स्टेटस के दरमियान में ना स्पेस है। तो वो एसपीएसएस के अंदर या तो आप अंडरस्कोर यूज करें या डैश यूज करें या कोई और डॉट यूज करें, स्पेस को वो वेरिएबल नहीं कंसिडर करता। ठीक है, तो बाकी सारे जो है ना ये आपके पास आ गई हैं। अब ये वेरिएबल व्यू है, डाटा व्यू में जाए तो ये लें जी, ये सारा आपका डाटा जो है ना ये यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब यहाँ से आप जाएं और ये यहाँ से जो भी रेस्पॉन्सेज हैं आपके, अभी वो कन्वर्ट होने बाकी हैं। ठीक है, ये इनको यहाँ से कॉपी करेंगे और ये यहाँ से मैं करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे क्योंकि ये तो आपने भी कन्वर्ट करने हैं ना। राइट क्लिक कंट्रोल वी कर दें जी यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम लेगा, लें जी ये आपका डाटा तैयार हो गया। ठीक है, और नीचे देखें, नीचे आपके ये 95 रेस्पॉन्सेज और यहाँ भी आपके 95 पूरे के पूरे। इस तरीके से जी शीट आपकी तैयार होती है एक्सेल से, यानी गूगल फॉर्म पे डाउनलोड, देन एक्सेल के अंदर उसकी कन्वर्जन, उसकी कोडिंग, और फिर इसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके एनालिसिस अगर आप एक्सेल के ऊपर करना चाहें तो एक्सेल के ऊपर बड़े आराम से इसके एनालिसिस हो सकते हैं। आप इन तमाम वेरिएबल की एवरेजेस के ऊपर काम करते हैं, एसपीएसएस में आपको बताया हो शायद किसी ने। तो इन तमाम वेरिएबल की एवरेजेस लेनी पड़ेंगी। तो एवरेजेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन तमाम की आपको, यानी कि ये तमाम क्वेश्चन की आप इसकी आप एवरेज लेंगे, सॉरी, इस वेरिए इस ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इन तमाम को ऐड करेंगे और इनके नंबर आप ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे, उसकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, एवरेज वैसे मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ, एक शीट है मेरे पास। फिर इसी तरह JI1, JI2, JI3, तमाम क्वेश्चन के जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं तमाम की एवरेजेस आएगी। ठीक है, यानी कि आप मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन के अंदर आप JI1 डालेंगे, JI2 डालेंगे, JI3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, एंटर करेंगे, एवरेज आ जाएगी आपकी। एंड सेम गोज फॉर द JS2, 3, जो भी आपका वेरिएबल है उसके जरिए, और फिर एवरेजेस के ऊपर आप फिर सारा काम करेंगे, डिस्क्रिप्टिव्स कैलकुलेट होंगे एंड फलाना ढमकाना, वो तमाम चीजें जो है ना इसके ऊपर आपकी हो जाएंगी। एक्सेल के अंदर अगर आपने डिस्क्रिप्टिव्स कैलकुलेट करने हैं तो पहली बात तो ये है कि एक्सेल में आपको इनकी एवरेजेस जो है ना वो आपको लेनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि एवरेजेस का मतलब ये है कि आपने एक एक वेरिएबल की एवरेज लेनी है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ ए एवरेज ऑफ BPC, तो इसमें आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, और इन तमाम क्वेश्चन की फर्स्ट रेस्पोंडेंट की एवरेज आएगी जी आपकी ये, इस तरीके से आप एवरेज लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, लो भाई ये इसकी एवरेज आ गई है।
और डबल क्लिक करेंगे तो ये तमाम क्वेश्चन की एवरेज आ जाएगी। इसकी डेसिमल पॉइंट्स कम कर दें, ये लें, ये एवरेज आ गई है। इसमें से कोई भी आंसर जो है 5 से अबव नहीं होगा और 1 से कम नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, 5 इज द हाईएस्ट एंड 1 इज द लोएस्ट। तो ये तमाम जो ये रेस्पोंडेंट 1 था, ये रेस्पोंडेंट 2 था, ये रेस्पोंडेंट 3 था, तो तमाम रेस्पोंडेंट की एवरेजेस तमाम क्वेश्चन की यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने बाकी क्वेश्चंस की भी लेनी है तो कोई जरूरत नहीं है एवरेज। अब यहाँ पर बीपीसी है ना, तो इसी एवरेज के फार्मूले को अब इधर ड्रैग करेंगे तो वो अगले वेरिएबल की निकाल देगा। तो ये देखिए, इसने एवरेज ऑफ H2 to P2 कर दिया होगा। अच्छा, इसने इसकी ये इसको ड्रैग नहीं कर रहा, हमें इसको करवाना पड़ेगा फिर। तो इज इक्वल एक्सक्यूज मी सर, सर जी एक जी क्वेश्चन है, आई थिंक एक हैंड रेज हुआ है एक स्टूडेंट का, आप जी जी ले बोलें। लेंगे? सर इस स्टेप को काइंडली प्लीज रिपीट कर दें। किस स्टेप को? सर ये जो एवरेज वाले एवरेज को? वाला आपने बताया, जी ये मैं जी। ले रहा हूँ एवरेज दोबारा से, अब इसको जरा देखें ओ, आप, ओ, ठीक है। ओ, ओके सर, थैंक्स सर। देखें, ये मैंने ब्रीच ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की एवरेज ले ली एक्सेल के अंदर। यानी ये क्या किया, इन तमाम वेरी क्वेश्चंस जो है ना, यानी कि ये आपका रेस्पोंडेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। रेस्पोंडेंट 1 के ब्रीच ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के तमाम क्वेश्चन की कंबाइंड एवरेज। अब मुझे रेस्पोंडेंट 1 की JI के तमाम क्वेश्चन की एवरेज चाहिए। तो क्या करेंगे जी, यहां पर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, अब इसमें JI करेंगे जी। JI किधर है जी? ये पड़ा है जी, 1 2 3 4 5, ये JI जी। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये JI की एवरेज आ गई है जी। ठीक है, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे ड्रैग हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये रेस्पोंडेंट कौन सा है जी? ये रेस्पोंडेंट 24th के JI के 5 क्वेश्चन की एवरेज है। यही काम SPSS के अंदर भी आप मीन के फंक्शन के जरिए कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक्सेल के अंदर भी हो रहा है। तो इसको मैं AVG JI कर देता हूँ। अब दोबारा देख लें इसको, अगर फिर कोई समझ नहीं आई तो फिर AVG JS आ जाएगा। अब ये JS था मेरे ख्याल में, ये JS है और ये JI है, ठीक है, सॉरी, ये JI है और ये आपका JS हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ JS। ठीक है, तो अब जरा इनकी एवरेज भी ले लेते हैं। तो वही वाला पहले मैं लिख लेता हूँ सारे यहाँ पे। फिर है जी आपकी एवरेज ऑफ DWB, ये। अब यहां पर देखें जी, इज इक्वल टू AVG, एवरेज का फंक्शन लगाएं, दिस इज द एवरेज फंक्शन। अब वो आपसे नंबर मांगेगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ JS। तो ऑल JS क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट। नाउ JS स्टार्ट्स फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड इट इज फॉर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट, दैट्स इट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें, ये JS की एवरेज आ गई। और डबल क्लिक करें फ्लिप हैंडल बना के तो ये सारा नीचे ड्रैग हो जाएगा। एंड द लास्ट इज द एवरेज ऑफ DWB। तो ऑल क्वेश्चन ऑफ द DWB फॉर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट। तो ये है जी ऑल क्वेश्चन ऑफ DWB फॉर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट। एक के लिए करेंगे, अगलों की खुद ब खुद ही वो ड्रैग में कैलकुलेट कर देगा। इसको आप डेसिमल पॉइंट कम खत्म करें और डबल क्लिक करें तो लीजिए। अब आप इसमें कोई भी देख लें, कोई भी आंसर 5 से बड़ा नहीं, इन तमाम में देख लें। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहां पर देखें जी, इज इक्वल टू मिनिमम का फंक्शन लगाएं जी। मिनिमम इसमें 1 होना चाहिए, एंटर करें, 1 आएगा, 1 1 1 1। मैक्स का फंक्शन लगाएंगे, इज इक्वल टू मैक्स, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, 5, इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं आएगी आपकी इसमें। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज करेक्टली। अगर आपकी एवरेज ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आपका लिक्विड स्केल ठीक नहीं है। फिर उसकी रीजन क्या हो सकती है? उसकी रीजन ये हो सकती है कि फिर आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, फिल्टर लगाने के लिए आप देखें, इसको क्लिक करें और कंट्रोल L से मेरे ख्याल में फिल्टर आता है। अच्छा, कंट्रोल L को छोड़ें, आप यहां से जाकर ना फिल्टर लगाएं, यहां से ये सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे फिल्टर लगाएं। ये फिल्टर लग गया जी। वो जरा छुप गए हैं तो इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें। डबल क्लिक करें तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। अब 5 से ऊपर वाली वैल्यू आने की रीजंस क्या हो सकती है कि आपका कोई मिसिंग डाटा हो सकता है, या किसी ने 5 लिखा हो ना तो गलती से 5 लिखा गया हो आपसे, वो रीजन हो सकती है। गलती से 2 लिखा गया हो, वो रीजन हो सकती है। गलती से 1 लिखा गया हो, वो रीजन हो सकती है। तो आप फिल्टर लगाकर इन तमाम चीजों को देख सकते हैं। देखें, अब इस वेरिएबल को मैं चेक करता हूं। इस पर क्लिक किया, इस फिल्टर की ये बॉक्स पे क्लिक करें तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। अगर यहां पर कोई 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 3 हुआ, 4 4 हुआ, 5 5 या 1 5 हुआ, तो वो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है दैट इज फाइन। तो फिल्टर लगाकर आप उस चीज को प्योरीफाई कर सकते हैं, या इसको मजीद डिटेल में देख सकते हैं। ओके कर दें, ठीक है, इसमें चेक करें, कुछ भी नहीं है, ओके कर दें। इसमें चेक करें, कुछ भी नहीं है, ओके कर दें। तो ये सारा आप इस तरीके से चेक करेंगे। अगर फिल्टर में कोई मसला नहीं आ रहा है तो दैट्स फाइन।
आप चाहते हैं कि मुझे इसमें से सिर्फ 16th रेस्पॉन्डेंट जो है ना, यानी कि हमारा जो 16वां रेस्पॉन्स था, मुझे सिर्फ उसका डाटा चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पर इसको अनसेलेक्ट करें, इसको अनसेलेक्ट, और यहाँ से जाकर आप 10th वाले का देखना चाह रहे हैं, 15th वाले का देखना चाह रहे हैं, ओके कर दें, तो सिर्फ 10th वाले का आपको डाटा दिखा देगा वो। और इसको फिल्टर को आपने वो करना है, क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये क्लियर फिल्टर लिखा हुआ है, क्लियर फिल्टर करें तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये फिल्टर वाला ऑप्शन भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज जो है इस तरीके से, यानी कि इसमें आप मिसिंग वैल्यू भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये 3 जो है ना, यहाँ पे ये उड़ा दिया मैंने। अब देखते हैं कि इसमें मिसिंग, ये अब इसमें एक मिसिंग वैल्यू आ गई है ना, अब ये देखते हैं इसको आइडेंटिफाई करता है या नहीं करता। राइट क्लिक करें तो ये देखिए यार, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है कि दिस इज मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू को फिल आउट करने का स्टूडेंट सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि पता नहीं उसने स्ट्रांगली एग्री कहा हो इस क्वेश्चन ईयर के अगेंस्ट, पता नहीं उसने स्ट्रांगली डिसएग्री कहा हो, पता नहीं उसने एग्री कहा हो। तो जब पता नहीं वाली बात आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, आप फ्री कर दें इसको, न्यूट्रल डाल दें। न्यूट्रल तो उधर भी सही है, इधर भी सही है, एंटर कर दे, तो ये अब मिसिंग डाटा नहीं आएगा। तो ये देखें जी, ये कोई मिसिंग डाटा नहीं है आपके पास। तो मिसिंग डाटा को आइडेंटिफाई करने का और एक ऑड वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है इसी शीट के अंदर। ठीक है, बाकी आपने शुरू में बहरहाल खैर वो मैंने मैडम से पूछा था, मैडम ने कहा था कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चले चले बता देता हूँ। आपने शुरू में डिस्क्रिप्टिव का कहा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी हम इसमें देखेंगे, तो बता देता हूँ जी आपको, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी इसमें कैलकुलेट किए जा सकते हैं। उसके लिए आप डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये डाटा एनालिसिस की एक टैब नजर आएगी, ये लिखा हुआ है जी। ठीक है, ये डाटा एनालिसिस की आपको एक टैब नजर आएगी, इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ले जी, जो आप एसपीएसएस में करते हैं सब कुछ यहाँ पे आया हुआ है। जो भी आप एसपीएसएस के अंदर करते हैं सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। हाँ जी, वन वे अनोवा लगाना है, टू वे अनोवा लगाना है, कोरिलेशन कैलकुलेट करनी है, कोवेरियंस, डिस्क्रिप्टिव आ गया जी, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग करनी है, टी टेस्ट करनी है, हिस्टोग्राम चेक करना है आपने, इसमें रिग्रेशन, ये रिग्रेशन आ गई, रैंक एंड सम रैंक आपने करना है, टी टेस्ट लगाने हैं, जी टेस्ट लगाने हैं, सैम्पलिंग करनी है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है डेटा एनालिसिस में। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि दिस के सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो एक टूल होता है, एट द एंड रिजल्ट हर जगह से निकल आता है आपका। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव चेक करने हैं, लगाएं जी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट, किधर गया वो डिस्क्रिप्टिव, ये डबल क्लिक करें जी, वो पूछ रहा है कि इनपुट रेंज दें जी मुझे। ठीक है, तो रेंज में देता हूँ, यही वाली रेंज दे देता हूँ कि ये है जी मेरी रेंज। ये इसके डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो कैलकुलेट करेगा। इसमें ओके करते हैं इसको, डिस्क्रिप्ट प्लीज चूज एटलीस्ट वन स्टेटिस्टिकल पोर्शन। इसमें मेरे ख्याल में आपको जो है ना वन बाय वन जो है ना इसको डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो इसके चेक करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है ना वो आपके डिस्क्रिप्टिव करेगा, अदरवाइज मेरे ख्याल में रेंज के ऊपर जो है ना ये शायद ना करे। ठीक है, तो वन बाय वन जो है ना आप इसमें करके तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो यही है कि आप इसको एसपीएस से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आपने सिर्फ वेरिएबल की रेंज डालनी है, उसने आपको डिस्क्रिप्टिव कैलकुलेट कर देनी है। तो वो सबसे जो है ना आसान तरीका जो है ना वो वहां पर है। यहाँ पर करना चाहें, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आप इसकी कोई रिलेशन चेक करना चाहते हैं, ओके करें, यहाँ पर उसको रेंज दें, वो आपको कोरिलेशन भी चेक कर देगा। ठीक है, तो ये हर तरह की चीज जो है ना इसके अंदर हो सकती है, एक्सेल के अंदर भी। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिसर्च के अंदर या एफवाईपी के अंदर ये भी कहा जाता है, ये भी देखा जाता है कि आपने टूल कौन सा यूज किया है। अगर आपने बहुत ही कोई आउटडेटेड टूल, जैसे कि एक्सेल डिस्क्रिप्टिव्स के लिए, कोरिलेशन के लिए ना बहुत ही आउटडेटेड टूल है, ठीक है, वो कहते हैं कि यार कोई नया टूल यूज करके आना था, यार ये तो आपने वही घिसा पिटा एक्सेल यूज कर दी है, तो उसके लिए आप स्मार्ट पीएलएस यूज कर लें, उसके लिए आप ईव्यूज यूज कर लें, उसके लिए आप क्या है एसपीएसएस यूज कर लें, तो वो एक थोड़ा सा ना आपकी तरह इमेज जो है ना वो अच्छा बनता है कि यार इसने कोई रिसर्च का, जो प्योर रिसर्च का टूल है ना ये सॉफ्टवेयर, ये जो है ना आपका एक्सेल जो है ये डाटा एनालिसिस का टूल है। जो रिसर्च एनालिसिस का टूल वगैरह जो होते हैं ना वो आपके ये ईव्यूज वगैरह और ये तमाम, क्योंकि इसमें इसमें बड़े बेसिक एडवांस लेवल के फंक्शन है। एक्सेल में बेसिक फंक्शन ही है। डाटा एनालिसिस की अगर टैब मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, ये टैब जो है ना ये आपको उसने दी, यही टेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको तो इन चीज़ों का पता नहीं होगा, लेकिन मैडम बैठी हुई डॉक्टर मैम, उनको शायद पता हो कि इसमें जीएमएम आपने लगानी हो, इसमें आपने आर्च काश मॉडलिंग करनी हो, इसमें आपने को इंटीग्रेशन के टेस्ट लगाने हो, इसमें आपने क्वांटाइल ऑन क्वांटाइल लगाना हो, कनेक्टेडनेस लगानी हो, वो इसमें नहीं लग सकती। ठीक है, उसके लिए फिर कोड आपको बनाना पड़ता है एक्सेल के अंदर, फिर वो इसके अंदर लगता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो जी ये आपकी शीट जो है ना वो तैयार होती है। ठीक है, इसी के साथ मैं एक शीट आपको और दिखाता हूँ, 5-10 मिनट जरा मुझे और दें। ये कुछ बेसिक फंक्शन एंड फार्मूलाज थे, ये मैंने आपके साथ, मैं चलो मैं शेयर कर दूंगा और वैसे ही क्विकली आपको एक ओवरव्यू दूंगा।
कि ये देखें यहाँ पर भी अगर आपके पास ये डाटा पड़ा हुआ है, आप इस पूरे कॉलम का सम करना चाहते हैं, इस पूरे कॉलम की एवरेज करना चाह रहे हैं, इस पूरे कॉलम में से मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम देखना चाह रहे हैं, वो खैर मैंने उस शीट के अंदर बता दी है। तो आराम से सम करें जी, यहाँ पे क्लिक करें, ये रेंज को सेलेक्ट करें और एंटर कर दें, तो ये आपका सम आ जाएगा। यही आप आगे ड्रैग कर देंगे तो अगले कॉलम्स का भी सम आ जाएगा। एक्सेल में ये आपको पता हो कि ये ड्रैग करें तो फार्मूला कॉपी होता है। एवरेज करें जी, एंटर कर दें, ये एवरेज आ जाएगी आपको। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, मिनिमम मैक्सिमम ये हम दो बता चुके हैं। स्टूडेंट्स हैं, ये एक स्टूडेंट है, इनका नाम है मुस्फरा, इनका आप क्वेश्चन ले लें। जी जी बोलें। जी बेटा। माइक अनम्यूट करके बताएं जरा। जी जी, कोई क्वेश्चन है तो बोलें। सर ये लास्ट से, कौन सा लास्ट से, क्या ये जो भी ये जो शीट सामने आई है या वो जो कंक्लूड किया है अभी? अनम्यूट एक करके बताओ मैं तो खुद देख ताकि लेता हूँ। क्लैरिटी आ जाएगी ना, समझ आ जाएगी क्या 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 बात करी। लास्ट से समझ नहीं आई, कौन सी चीज समझ नहीं आई? जो शीट सामने आई है। जो शीट सामने है कौन सी, उनसे पूछें कि डाटा सॉर्टिंग वाली शीट है या ये जो बेसिक फंक्शन वाली शीट है वो वाली है, बेटा वो बताएं। बेसिक बेसिक फंक्शन। फंक्शन वाली, ओके। देखें ये जो शीट है ना, ये मैंने वैसे वैसे ही आपके साथ शेयर की है। इसमें मैंने कुछ ये शीट्स बनाई हुई थी, मैंने कहा था कि अगर मुझे इसमें टाइम मिला तो ये मैं आपको फिर करवाऊंगा, ठीक है। इस शीट में जो है ना आपके पास डाटा जो है ना वो अवेलेबल है। इसमें आपको ये सेल्स का डाटा दिया गया है अगेंस्ट डिफरेंट ईयर, जाहिर सी बात है डुप्लीकेट डाटा है, रेपिटेशन है, 2006 का सेल्स कई बार हुई होंगी। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है और ये प्रॉफिट का है। जब सेल में से सीओजीएस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पता होगा आपको। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि भाई मेरे पास इतना ज्यादा डाटा है, तो मैं अगर ये देखना चाह रहा हूं कि मेरी टोटल सेल का सम क्या है, तो मैंने नीचे सम का फंक्शन लगा दिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू SUM सम। सम का फंक्शन डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, तो बजाय इसके कि आप कर्सर से सिलेक्ट करें, सॉरी माउस से सिलेक्ट करें, आप यहाँ क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दें, तो वो पूरी आपकी रेंज सेलेक्ट कर लेगा। और इस सेल्स वाली जो ये हेडिंग आ रही है ना, इसको बाहर निकालना है, बिकॉज ये अल्फाबेट्स हैं और ये क्या हैं, ये हैं जी आपके न्यूमेरिक। तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो करेंगे तो वो नीचे, जैसे ही शिफ्ट दबा के डाउन 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 करते जाएंगे वो नीचे जाएगा। यहां तक आपने करना है और ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये फार्मूला ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, नीचे जाकर देखना चाह रहे हैं तो ये नीचे भी लगा हुआ है, ये एंटर कर देंगे तो ये आपका सम आ जाएगा और इसी को ही आप आगे ड्रैग कर देंगे। एवरेज करनी है तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सम की जगह पर इज इक्वल टू AVERAG, वो एवरेज मैंने आपको उधर भी करके दिखाई है, कौन सी वाली शीट के अंदर, ये वाली शीट जो है ना, यहाँ पर हमने ये एवरेज, यही वाला फार्मूला जी एवरेज का लगेगा। वहां मैंने इसको किया था रो वाइज किया था, सॉरी कॉलम वाइज किया था। इस शीट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस शीट के अंदर मैं रो वाइज कर रहा हूँ। आगे ड्रैग कर देंगे, ये आ जाएगा मिनिमम इज इक्वल टू MIN, मिन का फंक्शन है जी, डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, डाउन एरो कर दें, ये मिनिमम आ गया। मैक्सिमम इज इक्वल टू MAX मैक्स, डबल क्लिक, रेंज सेलेक्ट करनी है, राइट इस पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और सेल्स को बाहर निकालें, कंट्रोल से बटन हटा लें, उंगली हटा लें और एक एरो नीचे कर दें और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये आपका मिनिमम। काउंट, काउंट वो कह रहा है कि बताओ कि कितनी वैल्यूज हैं, तो वैसे लगता है कि 311 ये हैं, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे काउंट, ठीक है, और ऊपर एक हेडिंग है तो ये 310 होनी चाहिए, लेकिन फंक्शन के जरिए अगर आप करना चाह रहे हैं इज इक्वल टू COUNT काउंट, डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक करें, इसको ये रेंज दे दें, एंटर कर दें, तो ये लें जी। अब इन तमाम को सिलेक्ट करके आगे ड्रैग करें तो ये सारी आपकी अगली वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा वी लुक का फंक्शन जो है ना वो मैं छोड़ देता हूँ, इस सर एक शीट में किसी रिक्वेस्ट ने। है, वो ये है जी कि ये जैसे हमने प्राइमरी डेटा फाइल प्रॉपर आपने बताई और हमने सीखी कि किस तरह से प्राइमरी डेटा की कोडिंग की, और फिर हमने, अगर आप जी एक जी। पैनल डेटा का एक रेफरेंस दे दें फॉर दो स्टूडेंट जो कि सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पैनल डाटा की अगर आप बात कर रहे हैं तो पैनल डाटा का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पैनल डाटा के लिए ये है कि फॉर एग्जांपल अब पैनल डाटा की तो पहले तो डेफिनेशन ये आपको एक पता एक होनी चीज और चाहिए। सर, ये पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन ले लें, मे भी शायद इसी से रिलेटेड हो जो भी आपने जी कराया। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? ये अनम्यूट कर लें निम्रा आप। आई थिंक कर हाँ जी सकते बोलें बेटा, हैं। क्या क्वेश्चन है? एवरेज निकालना बता दें, एवरेज निकालना किस तरह बतानी, चलें एवरेज बता देते हैं जी आपको। एवरेज बेटा देखें,
मैं आपको चलें एक, देखिए बेटा ये मेरे पास जो है ना, मैं इसको जूम भी करता हूँ, ये है जी 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं, इसकी एवरेज निकालनी है। क्या हो एवरेज? 5 4 9, 9 और 1 10, 10 तो 12, 12 13 14 15, इसकी एवरेज क्या है? 15 को 5 पे डिवाइड, एवरेज का फार्मूला बेसिकली समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो 5 4 9 और 1 10 तो 12, 12 और 3 15, तो इसकी एवरेज क्या आनी चाहिए? 15 इज द सम एंड 5 आर द नंबर, 15 डिवाइड बाई 5 3 आनी चाहिए इसकी एवरेज। ठीक है, तो एक्सेल में एवरेज का फंक्शन है इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज। डबल क्लिक करेंगे और इन तमाम एरे को सिलेक्ट करेंगे। एरे का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक जो भी सेल एड्रेस आ रही है ना, उनके दरमियान में कॉलन के साथ उनको ज्वाइन किया जाता है, डेट विल बिकम एन एरे। ये आपने बात सुना कि इस एरे को सेलेक्ट करें, इस रेंज को सेलेक्ट करें, इस एरे को सेलेक्ट करें, ये एरे होती है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ये लीजिए ये आपकी 3 इसकी एवरेज आ गई है। तो यही मैंने किया है। दूसरी शीट के ऊपर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें मेरे पास ये रेंज दी हुई है, या चलें आप वाली शीट के ऊपर ही उसको देखते हैं, इसी शीट के देते हैं। ये देखिए ये मुझे रेंज दी हुई है, ये ये मेरे पास सारी रेंज दी हुई है। मैं इस पूरी रेंज का, सारे क्वेश्चंस के आइटम्स का मैं एवरेज करना चाहता हूं, तो यहां पर एवरेज का फंक्शन लगा देते हैं। देखें जी कैसे लगेगा, इज इक्वल टू AV एवरेज। इसको डबल क्लिक करें। अब मैंने इस तरह से रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, बिकॉज मेरे पास डाटा कॉलम रो में नहीं है, कॉलम में है। तो एवरेज लेनी है मैंने इसकी, तो ये देखिए इस तरीके से इन तमाम को सिलेक्ट करें। कहाँ तक लेनी है जी? एंड तक ले लें एंड तक, ये एंड तक ले ली। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें, तो ये आपकी अब तमाम वेरिएबल के तमाम आइटम्स की एवरेज जो है ना वो ये आ रही है, और ये भी 5 से ऊपर नहीं होगी और 1 से कम नहीं होगी। तो एवरेज बेटा इस तरीके से लेते हैं। अच्छा, जहां तक बात है पैनल डाटा की, तो पैनल डाटा में तो पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पैनल डाटा होता क्या है। पैनल डाटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइम सीरीज एंड द क्रॉस सेक्शंस। क्रॉस सेक्शन में हम कंपनीज भी ले सकते हैं, हम इंडस्ट्रीज भी ले सकते हैं, हम वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम उसके अंदर। ठीक है, और टाइम सीरीज के अंदर आपका टाइम होता है। पैनल डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैं आपको उसका एक लेआउट, एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाता हूँ। ये टाइम सीरीज आपकी यहां से चलती हैं और यहां पर आपके क्रॉस सेक्शंस होते हैं। ये होता है जी पैनल डाटा का एक, आप कह सकते हैं कि डायग्रामेटिक व्यू ये होता है। जो आपका क्रॉस सेक्शन डाटा होता है उसका डायग्रामेटिक व्यू ये होता है, क्रॉस सेक्शन वेरी करते हैं और टाइम फ्रेम एक ही होता है आपके पास। और जो आपके पास टाइम सीरीज, ये क्रॉस सेक्शनल डाटा है जी, ये पैनल डाटा है। और जो टाइम सीरीज डाटा होता है उसका क्या होता है, टाइम आपके पास वेरी करता है और क्रॉस सेक्शन जो होते हैं ना वो आपके पास एक रहता है, क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं करते। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट मल्टीपल टाइम, टाइम सीरीज। मल्टीपल क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट अ सिंगल टाइम फ्रेम, क्रॉस सेक्शन। मल्टीपल क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट सिंगल टाइम, मल्टीपल टाइम फ्रेम, पैनल डाटा। ठीक है, तो ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब देखें जी, आपके पास टाइम फ्रेम है जी 2005 2006, ये मैं आपको शीट बनाकर अब दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपके ईयर्स हैं, और सॉरी ईयर स्लैश क्या कर लें, कंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी ईयर्स आपके 2005 2006, कहाँ तक लेकर जाएंगे? 2029 तो खैर अभी आए नहीं है, 2025 के एंड तक ले जाते हैं, ले जी। ये आपके ईयर्स जो है ना ये आपके हो गए हैं। बस 5 से 10 मिनट मुझे और दें, उसके बाद ये वाइंड अप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके ईयर्स एंड कंट्रीज हो गए, और ये आपकी ये ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपने कंट्रीज डालने हैं, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे जी? यहाँ पर आप डाल दें फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद श्रीलंका, और उसके बाद जो है ना एक एक दो तीन एक और ले लेते हैं, नेपाल। ठीक है, मैंने साउथ एशियन कंट्री का जो है ना ये मैंने आपको दिखाया है। तो अब देखें इसमें ये आपके कंट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना इनकी तरह विड्थ खोल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है ना क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं। तो ये आपकी पैनल डाटा की फाइल ऐसे बनती है। अब आपकी सर वेरिएबल्स कहाँ पर आएंगे? तो बेटा वेरिएबल आप यहाँ पर डाल लें, इंसर्ट करें, और यहाँ पर आप वेरिएबल्स लिखें और यहाँ वेरिएबल डाल दें। फॉर एग्जाम्पल आपका ये वेरिएबल नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका वेरिएबल नंबर 2 है, और इस तरीके से वेरिएबल नंबर 3, वेरिएबल नंबर 4। तो ये देखिए ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस और ये मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो ये यहाँ पर आप सारा आपका डाटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक शीट दिखाता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दें, आपके लिए बड़ी ये बेनिफिशियल साबित हो जाएगी। मैं आपको इसकी एक शीट दिखाता हूँ, किधर है जी? फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स, बुक्स एंड नोट्स, इसमें कहाँ कहाँ है वर्टिकल? ये है जी वर्टिकल पैनल, नहीं
ये नहीं, हॉरिजॉन्टल पैनल किधर है? GM, ये पैनल डाटा, ये भी नहीं है। मेरे पास एक शीट है, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि उसमें आपको ना ये पता चल जाए कि पैनल डाटा जो है ना वो होता किस तरीके से है। एक मिनट, मैं अपने थीसिस का डाटा से आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट ज़रा मुझे देंगे। कास्ट किधर है जी? PhD फाइनेंस, रिसर्च थीसिस, रिसर्च पेपर, या इसमें डाटा, ये ये है जी पैनल डाटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके ये कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके क्रॉस सेक्शंस हैं। तो आपके पास ये देखिए, ये आपका एक कंट्री आ गया, उसके बाद फिर ये ब्राजील के बाद फिर आपके पास, सॉरी, इंडस्ट्रीज हैं। ब्राजील की बेसिक मटेरियल्स, ये उसकी इंडस्ट्री है। ब्राजील की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये उसकी एक इंडस्ट्री है। और ब्राजील का इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये उसकी इंडस्ट्री है। और उसके अगेंस्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम है। अब जरूरी नहीं है कि यहीं पर आपकी इंडस्ट्रीज लिखी हुई हो और यहाँ पर आपके पास टाइम फ्रेम हो, ऐसे भी बन सकता है। आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज डाल लें या कंट्रीज डाल लें, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रीज यहाँ पर डाल दिए थे और यहाँ पर टाइम फ्रेम ले लिया था, कोई मसला नहीं है। आप इन कंट्रीज को यहां पर डाल लें और टाइम फ्रेम को यहां रहने दें और वेरिएबल्स को यहां पर ले लें। अब ये मेरे वेरिएबल हैं: नेट कनेक्टेडनेस, FDI, इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट, ट्रेड ओपननेस, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, क्रूड ऑयल प्राइस, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, और उसके अगेंस्ट की डाटा लिया हुआ है। तो ये पैनल डाटा है। अब अगर आप इसको ईव्यूज में अगर लेकर जाए ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ ईव्यूज में कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा। राइट क्लिक करके पेस्ट करें, नेक्स्ट करें, ये देखें जी, ये लिखा हुआ आ गया डेटेड पैनल। क्रॉस सेक्शन में उसने कंट्री ले ली है और डेट सीरीज में उसने ईयर ले लिया है। फिनिश करें, क्विक में जाएं, एस्टिमेट इक्वेशन लें जी, ये पैनल के ऑप्शन भी आ गए हैं यहाँ पे। इसमें फिक्स्ड इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट, ये शायद आपको अगर आइडिया नहीं है तो ये इसमें फिर हम काम करते होते हैं। ठीक है, तो पैनल डाटा की फाइल बेटा ऐसे बनती है। आपकी फाइल के ऊपर अगर आप आ जाएं तो आप इस तरीके से इसको, बेशक यही फाइल आप देखें, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये आप यहाँ पर नहीं डालना चाह रहे, यहाँ पर इंसर्ट करें, ठीक है, और इनको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल C करें, और यहाँ पर कंट्रोल V कर दें। तो ये लें, ये आपकी, सॉरी, इसको ट्रांसपोज करके करना था, पे स्पेशल वैल्यूज ट्रांसपोज, और ये तो ये आपकी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसको यहाँ से आप डिलीट करें। ठीक है, तो ये 2005 6 7 8 9, फिर उसके बाद 2000, ये सारा इसके लिए सारा एक कॉपी नीचे होता जाएगा, ठीक है। फिर 2005 6 7 8 9 के लिए इंडिया, फिर 2005 7 8 9 के लिए बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, आप इसको उसी तरीके से करें, ज्यादा बेहतर है आपके लिए, जिस तरीके से ये मैंने आपको बताया। यहाँ क्रॉस सेक्शन और यहाँ पर टाइम सीरीज और यहाँ पर सारा आपका डाटा आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस फाइल को लेकर जाएंगे, पैनल इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ये व्यूज वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपका होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, जो होती है। जहां तक वेरिएबल की बात है, वेरिएबल एनीथिंग दैट कैन वेरी, हर वो चीज जो वेरी करता है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, आपकी एज, आपका वेट, ठीक है, आपकी जो भी चीज है, हर चीज वेरी करती है। ठीक है, कोई चीज ऐसी जो वेरी ना करती हो वो वेरिएबल नहीं होती है। दो तरह के वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। जो किसी पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट, जो फ्री ऑफ डिपेंडेंस है, फ्रीडम में है, वो इंडिपेंडेंट। बाकी मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, दैट इज द एक्सटेंशंस ऑफ द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कोई टाइप्स नहीं है। मीडिएशन जो होती है वो ब्रिज करता है IV और DV को, और मॉडरेशन जो होती है वो एक्सटर्नल इफेक्ट या मॉडरेट करता है किसी भी एक रिलेशन को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जी। सो दैट्स इट। मेरे पास ये एक्सेल की फाइल है, मैं ये कहा था कि चलें आपको ये बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से चलें ये फिर किसी वक्त प्योर एक्सेल की, अगर एडवांस एक्सेल की कोई वर्कशॉप हुई ना, या मैंने कभी करवाई वर्कशॉप, तो मैं मैडम के साथ शेयर कर दूंगा। आप अगर ऑनलाइन हुई तो आप उसके अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। मैंने वैसे ही बनाई हुई थी फाइल, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये बनाई थी कि आपको बता दूंगा। लेकिन चलें, ये जब एडवांस एक्सेल की या कोई एक्सेल की प्योर वर्कशॉप हुई ना, उसके अंदर ये फिर आपको करवा दिया करेंगे। एंड यू आर वेलकम टू ज्वाइन एनी वर्कशॉप विच इज ऑनलाइन फ्रॉम माई साइड, कि आप उसके अंदर भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। मेरा नंबर वगैरह जो है वो मैडम के पास है, आप बेशक उनसे लेकर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर लीजिएगा, या कोई मसला वगैरह अगर आपको आ रहा है तो मोस्ट मोस्ट वेलकम, आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड नाउ। डॉक्टर अनम, प्लीज योर सबमिशन। Thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge and expertise with us. And thank you so much, all the participants, for your active involvement. ओके जी, थैंक यू सो मच।
मुझे सर वो उम्मीद है कि असल में मैम का नेट जी जी। डिस्कनेक्ट हो गया, इस वजह से मैम आपको थैंक यू नहीं कर सकी उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आपको मतलब कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा कर जो है ना, जितना भी मतलब कि आगे तक ले जाया जा सकता है उसमें किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि 1 आवर के टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करना जो है ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले जो है ना मतलब कि मुझे बताया गया था कि ये 3 घंटे का जो है ना वो सेशन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने उसकी सारी प्रिपरेशन की हुई थी, लेकिन बाद में डॉक्टर ने कहा कि हसन इसको घंटे में ही जो है ना वो अगर आप कोशिश करें कि ख़त्म इसको अगर कर दें तो ठीक है, डेट्स फाइन, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी नहीं सर, जितना तो मेरा बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है ना वो डॉक्टर अनम के पास है। ये बेसिकली फिजिकल सेशन होता ज़्यादा बेहतर था, ठीक है, कि वहां पर मैं एक बार आप काम भी करवा लेता आपको, क्योंकि वहां पर अगर होता तो फिर ये 3 घंटे का होता तो वहां पर मैं चेक भी कर लेता कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे कर, मैं गाइड भी कर देता। लेकिन चलें, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर कोई ऐसा हुआ तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना फिर मैं वहां पे आऊंगा, करवाऊंगा। और आप मेरे से भी कोई गाइडेंस लेना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई एक्सेल की फाइल शेयर करके कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मेरे नॉलेज में आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर। थैंक यू सो मच सर। सेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, लेकिन इसमें ज़ाहिर टाइम कंस्ट्रेंट थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी ये फील हो रहा था और हम सबको भी, जो लिसनर्स थे, टीचर्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो ज़रा बहुत स्पीड से बताए जा रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट बस ये है कि ये शीट्स जो हैं ये शेयर कर लीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकें, और फिर जहां इनको कोई प्रॉब्लम होगी हम इन्हें गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you all.